अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया है जो मैंने वीडियोस बनाई हैं ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट पे ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ गो थ्रू देम एंड ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। आई हैव गिवन यू थीम समरी, इवन जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी मैंने वहाँ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा इसमें से एक ऐसे होगा आपका, जो पेज 19 में है आपकी बुक में, कि राइट डाउन योर ओन नैरेटिव यूजिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स बाय इंक्लूडिंग देयर एक्शंस, स्पोकन वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपने एक अपना नैरेटिव लिखना है कि समथिंग दैट यू डिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ एंड हाउ वर यू फीलिंग एट दैट टाइम, or it can be the story of somebody else who was afraid to take the first step. It can be any minor thing, it doesn't have to be a really big thing. For example, the first time you tried to ride a bicycle, or the first time that you entered a new college, the first time that you joined a course, the first time you actually cooked something. So it can be any first experience of your life and you can share it, and it should be in the narrative form. Narrative form का मतलब होता है कि आपने किसी ऐसे इवेंट के बारे में लिखना है that has already happened in the past. So the verbs that you are going to use, the tense that you are going to use is going to be past. So उसमें आप past tense, simple past tense, past continuous, past perfect, आप ये tenses use कर सकते हैं. But the narrative has to be all in past tense. Now looking at this page, जो इस वक्त आपके सामने है, इस ये vocabulary related है, and this is page number 20 in your book. There are some words given at the top, और आपने उनका जो मीनिंग है वो नीचे पढ़ के यू नीड टू डिसाइड के विच इज़ द राइट वर्ड फॉर इट. एंड दिस इज़ कॉल्ड वोकेबलरी फील्ड. किसी एक फील्ड से या किसी एक जगह से हम वोकेबलरी उठाते हैं एंड वी ट्राई टू give you different variations within a word. So if you remember that day I said ke at your level you should not be writing that he was pleased or he was happy. There are so many other words within the same field which means the same thing, so you need to upgrade your vocabulary because of that. So कुकिंग में भी ये होता है कि जब भी आप बात करते हैं तो कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो कहते हैं ओ आई एम कुकिंग. हालांकि कुकिंग के अंदर देयर आर डिफरेंट एक्शंस एंड डिफरेंट वर्ड्स विच परटेन टू डिफरेंट एक्शंस. सो दीज आर गिवन. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट देखें, मार्क विद अ नाइफ विदाउट कटिंग. सो दिस इज कॉल्ड स्कोर. स्कोरिंग मीट, स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू बारबेक्यू समथिंग, तो आप पहले मीट पे हल्का सा विद अ नाइफ यू स्कोर इट, so the spices can go inside, so that is called scoring a meat. Take skin off fruit or vegetable. Whenever you do that, this is called peeling. Peeling a fruit, peeling a vegetable. Next is cut into cubes. When you are trying to cut something into cubes, whether they are small or big, it is called dicing. So if somebody says can you please dice an onion for me, so it means that he or she wants you to cut it into little cubes. The next is shake powder through a fine mesh net. So it means that you need to put something in, for example flour, it can be sugar, it can be any other powdery thing that you sieve, जिसको हम छन्नी कहते हैं, कि उसको आप जब उसमें से गुजारते हैं, you sieve something through a mesh or a net, so that is called sieving something. And you do this to avoid lumps, कि जब आप कोई चीज़ बनाएं तो उसके अंदर lumps वगैरह ना आए. So you can do it with चिकपी पाउडर, जिसको आप बेसन कहते हैं, उसको भी हम छानते हैं, मैदे को छानते हैं, आटे को छानते हैं, जस्ट टू अवॉइड एनी थिंग लम्पी गोइंग इन टू इट, या अगर कोई बीच में पत्थर है या कोई और अनवांटेड चीज़ है तो वो निकल जाए. मसाज विद हैंड्स नंबर 5, इसको कहते हैं हम नीडिंग. सो नीड में भी हम करते हैं जब हम कोई डो वगैरह बना रहे होते हैं. So we knead it and we try to make it a dough kind of a thing. Again we do it with different powders. हम आटे को भी knead कर सकते हैं, फ्लावर को knead कर सकते हैं, बेसन है उसको भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन what you are trying to make. पिज़्ज़ा के लिए जब आप डो बनाते हैं तो पहले उसको आप knead करते हैं. knead का मतलब होता है यूजिंग योर हैंड, स्पेशली ये जो आपका बॉटम ऑफ द हैंड है ना, जो आपकी एक तरह से हील ऑफ द हैंड है, उससे जब किसी को आप नीड करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड नीडिंग. कुक इन हॉट वाटर. दिस इज़ ईजी. वेन एवर यू कुक समथिंग इन हॉट वाटर यू बॉयल इट. वेन यू टर्न डाउन द हीट एंड यू मेक समथिंग कंटिन्यूली कुक ऑन लो हीट, उसको आप सिमरिंग कहते हैं. तो जब आपकी कोई चीज़ पक गई तो आप कहते हैं कि ओके नाउ लेट इट सिमर फॉर 5 minutes. सो सिमर मीन्स दैट यू टर्न डाउन द हीट and it still cooks slowly on very low heat. Use implement to cut food into shreds. We all have it in our homes. Whenever your mom is making gajar ka halwa, so you use a grater.
सो वो जो ग्रेटर है उसके अंदर मुख्तलिफ स्लॉट्स बने होते हैं, और व्हेन यू पुश समथिंग थ्रू इट सो इट कम्स आउट एज श्रेड्स. So it can be carrots, or it can be cabbage, it can be cheese also, आप उसको भी grate कर सकते हैं. Cook using hot oil in a pan, ये भी आसान है because you call it frying whenever you use something to cook in a oil, so that is called frying if the oil is a lot. Cut roughly, आप ख्याल नहीं रख रहे कि whether it is dice or whether it's cubes etc, you are just roughly chopping something, तो उसको chop करना कहते हैं. जैसे you can do it with garlic and जिंजर, कि आप ये नहीं देख रहे होते कि बहुत नाइसली किसी शेप में कटे हो, यू जस्ट रफली चॉप देम. स्टर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर को मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है, उसको आप स्टरिंग कहते हैं. जब आप चम्मच हिलाते हैं किसी चीज़ में गोल गोल सा, तो उसको यू कॉल इट स्टरिंग या मिक्सिंग. कट इनटू थिन स्लाइसेस लाइक पेपर, इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है. इसके अंदर डिफरेंट कट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु लव टू ईट चाइनीज़, उनमें आपने देखा होगा कि द वेजिटेबल्स आर यूजुअली कट इन लॉन्ग स्लाइसेस, तो उसको हम जूलियन स्लाइसेस कहते हैं. सो अदरवाइज व्हेन यू आर मेकिंग पोटैटो चिप्स, तो उसको भी आप स्लाइस करते हैं, थिनली स्लाइस भी करते हैं, थोड़ा थिकली स्लाइस भी करते हैं. Cook in oven without oil. So whenever you are cooking something in the oven and you do not use any oil, this is called baking. So you bake the meat, you bake fish, you bake vegetables, you bake a cake, ठीक है. तो उसके ऊपर हम oil as a frying medium उसमें हम नहीं लगाते. लेकिन उसी में अगर आप ऊपर ऑयल लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू पुट अ चिकन इनसाइड एंड यू पुट सम ऑयल ऑन इट, कवर इट विद ऑयल, सो दैट इज़ कॉल्ड लाइक रोस्टिंग समथिंग, तो उसमें ऑयल का एलिमेंट आ जाता है. Move to the next exercise. This is grammar. Collective nouns, we have already done them in the previous chapter. इसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो वहीं से आए हैं, fleet और swarm और set और suite और deck, but there are special words that we use with it. For example, insects का मैंने आपको बता दिया था कि when you have a lot of insect, that is called a swarm of insect. It can be bees, it can be ants, it can be any other insect. When you have a lot of people, so that is called a congregation. जलूस जिसको आप कहते हैं, congregation है ये. Many fish can be a school of fish or a shoal of fish. This is called shoal. So shoal भी कहते हैं और school भी कहते हैं. When you have a lot of ships together, तो आप उसको कहते हैं the fleet of ship. When you have a lot of paper, so you call it a bundle of paper. और वैसे अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो उसको हम rim भी कहते हैं, कि आप कहते हैं मैंने एक rim buy करना है, तो rim is actually a collection of like 500 sheets of paper. व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ रूम्स टुगेदर, तो आप उसको स्वीट्स कहते हैं, यानी आपके पास एक स्वीट है, तो आपने एक स्वीट बुक करवाया अगर होटल में, तो इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा एरिया बुक करवाया जिसमें 2 से या 3 रूम्स इकट्ठे होंगे. इट्स अ होल एरिया, इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग. मैनी कार्ड्स डेक में होती हैं, ठीक है, आप डेक खरीदते हैं और उसके अंदर आपके पास 52 या 54 कार्ड्स होते हैं. एंड व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ नाइव्स, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सेट ऑफ नाइव्स. सो यू यूजुअली बाय देम from the market in a different set. नेक्स्ट पे आ जाएं जी, चूज़ द करेक्ट वर्ब. अच्छा, वर्ब जो है वो डिपेंड करता है कि वेदर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. सो आई थिंक अगेन वी आर गोइंग बैक टू द वेरी अर्ली स्टेजेस. 6th 7th के बच्चे को भी ये आता है, तो इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट. यू नीड टू सी वेदर द मेन नाउन इज सिंगुलर और नॉट. अगर सिंगुलर है तो इज़ या अगर पास्ट टेंस है तो वॉज लगेगा, और अगर प्लूरल है तो आर या वर लगेगा. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हेयर डैश आर द न्यूज़. हेयर इज़ द न्यूज़, ठीक है. न्यूज़ बेशक एस के साथ ख़त्म हो रहा है, लेकिन इट्स ऑलवेज टेकन एज अ सिंगुलर नाउन. वेयर डैश माई शूज़, वेयर आर माई शूज़, बिकॉज शूज़ जो नाउन है वो प्लूरल है. फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. इंफॉर्मेशन अगैन इज़ अ कलेक्टिव नाउन है. इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो, तो हमेशा आप उसको सिंगुलर में लेंगे. द स्टेयर्स आर ओवर देयर. स्टेयर्स एस लगा हुआ ऑलरेडी, प्लूरल है. फर्नीचर अगेन ये आपका वो नाउन है जो सुनने में एक है लेकिन इट कैन परटेन टू डिफरेंट थिंग्स. सो फर्नीचर इज़ अनकम्फर्टेबल. पाकिस्तान इज़ अ वेरी नाइस कंट्री, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है. योर सन ग्लासेज आर ऑन द टेबल, ठीक है, तो आप आर लगाएंगे. होमवर्क इज़ वेरी बोरिंग, वर्क है. scissors are, sorry ये मैंने इस पे टिक लगाया, बट इट शुड बी आर. द scissors आर ऑन द आर माइन. पेयर ऑफ scissor अगर होता तो फिर हम कहते इज़, ठीक है. तो scissors आर ऑन द टेबल आर माइन. अगर यहाँ हम पेयर लगा देते अ पेयर, द पेयर ऑफ scissors ऑन द टेबल, फिर आप कहते इज़ माइन, क्योंकि पेयर सिंगुलर है. फिज़िक्स इज़ नॉट ईजी, बेशक उसके आखिर में इज़ आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट.
अच्छा जी, नीचे देख लें कि ये आपसे कह रहे हैं यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस वंस एज अ सिंगुलर नाउन एंड दी अदर एज अ प्लूरल नाउन। तो इन सब के मैंने आपको प्लूरल बना दिए हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि जब आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो व्हेन यू यूज़ देम एज अ सिंगुलर तो उसके साथ आप अ या एन ज़रूर लगाएंगे, बट व्हेन यू आर यूजिंग देम विद प्लूरल मोस्टली नो आर्टिकल्स आर यूज्ड विद देम। सो ऑक्स का ऑक्सन है, रूफ रूफ्स, पोटैटो पोटैटोज़, पार्टी पार्टीज़, डियर डियर ही रहेगा, ठीक है। ये इरेगुलर नाउन है तो ये अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक ही फॉर्म में रहता है। चीफ चीफ्स, फोटो फोटोज़, सीरीज़ सीरीज़ ही रहेगा, ठीक है। वाइफ वाइव्स, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, तो ब्रदर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगा। लाइव लाइव्स, फैमिली फैमिलीज़, बॉय बॉयज़, हाउस हाउसेज, सिटी सिटीज़, मैन मेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। सैंडविच सैंडविचेस, नर्स नर्सेज, शेल्फ का शेल्व्स। अच्छा, इसमें वर्ड को चेंज करना प्रॉब्लम नहीं होता सिंगुलर से प्लूरल, हाँ सेंटेंस में आपको कुछ और चीज़ें भी जहन में रखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से अगर मैं फ़ोटो ले लूँ तो दिस इज़ अ नाइस फ़ोटो, तो आप अ लगाएंगे साथ। बट व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज देम इनटू प्लूरल तो आप कहेंगे दीज फोटोज़ आर नाइस, दीज फोटोज़ आर नाइस, तो दीज आपको प्लूरल उसके साथ इंडिकेटर लगाना पड़ेगा और आर भी आप लगाएंगे। Same happens with the other nouns as well. When you are going to use them as singular, so you are going to use an article with them. But when you are going to use them as plural, the article will not be used. Fill in the blanks with the correct form of given verb in parentheses. Think about whether the noun is singular or plural. Again, we need to think about the verb. इनको verb to be कहते हैं हम, is, are, am. और आपने सोचना होता है कि अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है तो आप इज़ लगाएंगे या वॉज लगाएंगे अगर पास्ट टेंस में है, और अगर प्लूरल में है तो फिर वॉज या वर लगेगा। अब देखें दिस पेयर ऑफ सन ग्लासेस, दिस पेयर ऑफ सन ग्लासेस इज़ होना चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ आर लिखा हुआ, इज़ रियली एक्सपेंसिव। पेयर यूज़ किया तो पेयर इज सिंगुलर तो इज़ लगेगा। दीज सीजर्स आर ब्लंट, अब देखें दीज सीजर्स में लग रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन सीजर्स, आर ब्लंट। The jacket you are wearing is really nice, but those green jeans are horrible. So those green jeans में भी आपको पता चल रहा है कि प्लूरल है, दिस इज़ नॉट सिंगुलर। अगर इसकी जगह आता है बट दिस ग्रीन जीन्स, तो फिर हम उसको कहते हैं इज़ हॉरिबल, बट दोज ग्रीन जीन्स की जगह की वजह से हम इसमें आर लगा रहे हैं। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, फिजिक्स इज़ अ सिंगुलर नाउन। अ लॉट ऑफ न्यूज़ वी हेयर ऑन द टेलीविजन इज़ बैड, न्यूज़ बेशक आपको एस लगा हुआ नज़र आ रहा है बट इट इज़ सिंगुलर नाउन। The police is investigating a break-in in the National Bank last night. Police again is a collective noun, but it's a singular collective noun. और पुलिस इज इन्वेस्टिगेट तो नहीं हो जाएगा, तो द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग अ ब्रेक इन। पीपल आर, पीपल इज अ प्लूरल नाउन, ठीक है। थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी, £1,000 इज अलाउड, £1,000 लिखा है। अगर इसमें हम आ ना लगाते तो सिर्फ होता £1,000 आर अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन क्योंकि हमने लिख दिया है कि £1,000, तो इट्स मीन दैट यू आर यूजिंग इट एज एन अमाउंट। आप इंडिविजुअली उसको पाउंड्स को नहीं गिन रहे, आप कह रहे हैं कि यार 1,000 पाउंड बहुत बड़ी रकम होती है, तो वहाँ भी आप इसको सिंगुलर में ही लेंगे ना। लेकिन अगर आप उसको अलहदा लेंगे, कहेंगे 1,000 पाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसको प्लूरल में कर देते हैं। लेकिन जब आप उसको एज अ अमाउंट, एज अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं तो फिर आप उसको सिंगुलर लेते हैं। £1,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है जी। ये आगे भी जा रहा है, यू शुड ट्राई वॉकिंग सो फार जस्ट टू फाइंड एन ओपन सुपर मार्केट, 3 miles tire you out so quickly, I'm telling you. 3 miles टायर, टायर का मतलब आपको थका देगा। 3 miles हैं, प्लूरल हैं, तो टायर, तो टायर्स आप नहीं लगा सकते, तो 3 miles tire you out very quickly. They have exaggerated a little what the news about that new swimming pool. Did you see the temperature of the water? 41 degrees is too high. 41 डिग्रीज़, अगेन आपको लग रहा है कि डिग्रीज ज़्यादा है, लेकिन हम एक ख़ास टेम्परेचर की बात करें कि इस वक्त कितना टेम्परेचर है, 41 डिग्रीज़। ओ इट इज़ टू हाई। सो 41 डिग्रीज़ में आप उस वक्त का एक ख़ास टेम्परेचर देख रहे हैं जो है वन, दैट इज़ वन फिगर, सो उसके साथ आप इज़ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैं आपको थोड़ी डिटेल में करवाऊंगी क्योंकि इन्होंने यहाँ कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं दी। मैं आपको इसकी टाइप्स पहले करवाऊंगी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस की टाइप्स कितनी होती हैं, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं,
बहुत से बच्चे ट्रांजिशनल डिवाइसेस को कंजंक्शंस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू टेक इट अ लिटिल स्लोली, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ व्हाट ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर. ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, कंक्लूजन होता है, समराइजेशन होती है, तो उसके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो फॉर टुडे दिस इज़ the end, and tomorrow I am going to do transitional devices with you in detail, और इसी चैप्टर का पेज 22 23 इंशाल्लाह हम कल करेंगे. थैंक यू.